Hello friends, myself Dr. M. K. Gokru, Department Mathematics, Government College Ajmer। अब तक हम लोगों ने गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशंस को देखा था, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को देखा था। उसमें तीन पॉसिबिलिटीज को इवॉल्व किया था कि लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होल्ड कर जाएं, उसके लिए तीन अलग अलग पॉसिबिलिटीज देखी थी। और उसके बाद माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट को स्टडी किया था और फाइनली वी फाउंड दैट द रिजल्ट ऑफ माइकलसन मोर्ले experiment was not up to our expectation, that is the result are negative, and our thought was that there must be some fringe shift, and that shift will be equal to, theoretically that shift will be equal to 0.4 times the fringe width, but the fringe width was not found. Fringe shift was not found. Thus we arrive at the stage where this Michelson-Morley experiment found to be not holding the result as our expectations. So we found that negative results appear. But somehow some of the researchers try to explain the negative results, of Michelson-Morley experiment. So mainly there are four different explanations, four different schools of explanations. Earlier in my last lecture, I gave a simple explanation that V is equal to 0 when delta and fringe shift will be equal to 0 in that one. But today we are going to discuss the four possible explanations and failure of these explanations also. Means चार प्रकार से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को। उन चारों में एक्सप्लेनेशन तो ठीक बैठता था, पर फिर उनके आधार पर, उन एक्सप्लेनेशन के आधार पर कुछ क्वेश्चंस उठे और उन क्वेश्चन का जवाब देने में वो एक्सप्लेनेशन सफल नहीं हो पाया, इसलिए उस एक्सप्लेनेशन को छोड़ना पड़ा। तो जो चार थे उनमें फर्स्ट एक्सप्लेनेशन था which is known as Lorentz-Fitzgerald contraction hypothesis. Lorentz-Fitzgerald ने ये अज्यूम किया, ये हाइपोथेसिस दिया कि ईथर के रेस्पेक्ट में कोई एल लेंथ की बॉडी मूव कर रही है, तो ईथर इज नोन टू बी ए स्टैटिक मीडियम in our Galilean we have supposed all these up to now that space and time are constant. Space and time are constant, and ether is related with absolute space, and ether is presumed that ether is stable in that reference frame. So लॉरेंट और फिtzgerald ने ये कंट्रैक्शन हाइपोथेसिस दिया कि अगर मीडियम में, स्टेबल मीडियम में कोई एल लेंथ की वस्तु मूव कर रही है तो उसकी लेंथ एल के स्थान पर
L into 1 minus v upon p square upon c square की पावर हाफ होगी। यानी v वेलोसिटी से मूव कर रही है, L लेंथ इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर L लेंथ की रॉड है या L लेंथ की कोई भी वस्तु है वो मूव कर रही है, तो उसकी वस्तु की या उस रोड की लेंथ ये मेजर होगी स्टेबल ऑब्जर्वर। और इस एक्सप्लेनेशन से देखिए, इस एक्सप्लेनेशन के थ्रू टाइम जो माइकलसन मोर्ले एक्सपेरिमेंट में टाइम हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज t1 इज इक्वल टू ट्वाइस LC अपॉन c स्क्वायर माइनस v स्क्वायर। और अगर L को मैं इस फैक्टर से रिप्लेस कर दूं तो L की जगह ये क्या आ जाएगा, L इंटू 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर अपॉन 2 c स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/2। और जब इसको सॉल्व करेंगे तो इट विल बी twice L upon c square under root c square minus v square, and it is nothing but t2. So difference in these two times means difference of the two time taken by the light ray moving through the medium in Michelson-Morley experiment is same, and thus del t will be equal to 0. And del t is equal to 0 means there is no fringe shift. There will be no fringe shift. It automatically explains the result of Michelson-Morley experiment. But as soon as this explanation come into existence, two objections raised. One important objection raised. If we change the length of the Michelson-Morley experiment, distance between the mirror and the incident ray is changed, and mirror and transmitted ray is changed. Length between these two are, we have taken in Michelson-Morley, these two lengths are equal. But if they are different, if we take these lengths are different, means this is transmitted ray and this is reflected. The length of mirror, we have taken these two mirror at equal distance. But if we change the length, one length is short and other is long, then length of the arms of the interferometer are different. Even then, this result shift in the fringe is not observed. Means शिफ्ट अगर हम अलग अलग लेंथ की ये ले भी लें तब भी फ्रिंज में शिफ्ट नहीं होता। तो ये जो एक्सप्लेनेशन था, इस एक्सप्लेनेशन को ठीक लग रहा था, पर इस ऑब्जेक्शन के कारण, इस एक्सपेरिमेंट में ये चेंज करने के कारण ये एक्सप्लेनेशन फेल हो गया। फिर सेकंड स्कूल कुछ लोगों ने ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश की, ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस दिया। ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस क्या है कि जैसे हम मानते हैं कि ईथर इज मीडियम विच इज स्टेबल विद रेस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट स्पेस एंड अर्थ इज मूविंग विद दिस स्पेस। इन दिस हाइपोथेसिस, ईथर ड्रैग हाइपोथेसिस, it is assumed that some part of the medium means ether. Some of the ether is also moving with the earth. Means अर्थ के पेरिफेरी में जो मीडियम है ईथर, वो ईथर अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा है। और जब वो अर्थ के साथ साथ मूव कर रहा है तो ऑब्जर्वर जो उस मीडियम में है उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ऑब्जर्वर की वेलोसिटी जीरो हो जाती है। तो भी इस थ्योरी ने v जीरो होने के कारण ये जो नेगेटिव रिजल्ट आता है इसको एक्सप्लेन कर दिया। पर हुआ क्या? व्हाट हैपन?
phenomena of aberration come into mind, and Fresnel prediction and Vidal explained. These two things cannot be explained by this hypothesis. Why? What is the phenomena of aberration? Phenomena of aberration क्या है? जो स्टार से लाइट आती है उसको देखने के लिए अर्थ पर हम जो कोई भी अपरेटस रखते हैं वो स्टार की लाइट के डायरेक्शन में रखना पड़ेगा। पर हम जानते हैं कि अर्थ अपने एक्सिस पे भी घूमती है और सन के अराउंड भी घूमती है, यानी अर्थ मूव कर रही है। अर्थ मूव कर रही है इसका मतलब यह हुआ कि अलग अलग समय पर अलग अलग डायरेक्शन में हमें उस एपरेटस को जो लाइट को ऑब्जर्व कर रहा है उसको घुमाना पड़ेगा, उसको मूव कराना पड़ेगा। और जब वो मूव होता है तो क्या होगा, हम अगर वेलोसिटी v 0 मान लें तो वो एक्सप्लेन नहीं होता, इससे एब्रेशन का फिनोमिना एक्सप्लेन नहीं होता। कि अगर हम इसकी वेलोसिटी जो ईथर है जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर है और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी अगर 0 ईथर जो अर्थ के साथ मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी 0 हो गई, और उसकी वेलोसिटी 0 होने के कारण उस एपरेटस को, क्योंकि वो स्टेबल है, तो उस एपरेटस को हमें मूव नहीं करना पड़ना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसको जो तारे की लाइट आ रही है या किसी से इवनली बॉडी की जो लाइट आ रही है उसको ऑब्जर्व करने के लिए उस एपरेटस को मूव नहीं करना चाहिए, पर हमें मूव करना पड़ता है। दिस इज ऑब्जर्व इफेक्ट। सो दिस negates the result of this hypothesis. Again, the Fresnel also raised the question by his predictions. Fresnel's predictions was that velocity of light is c by n, where n is the refractive index of the medium. N is the refractive index of the medium, and we suppose that medium is at rest. When medium is at rest means ether is at rest, and then velocity of light is observed by the observer, which is stable in the medium ether. Velocity of light must be c by n, and if the medium itself is moving, then this velocity, medium itself moving with velocity v, then this velocity of light must be equal to c by n plus minus v into 1 minus 1 by n square, where n is the refractive index of the medium when medium is moving. Plus and minus is 4. This velocity of light is moving in the direction of velocity v. If it is so, then it is plus, and if it is against the motion of the velocity, ray of light, then it is minus. But it is always, the observed fact is that it is c by n plus minus v only. Observed fact is this. So these two results, these two experiments suggest that this hypothesis is again wrong. And the third one is emission theory. When we studied electrodynamics, and at that time we tried to explain the things in 3 different ways. One way was that law of mechanics are holding, law of electrodynamics are holding, but latter is to be modified. Means the second result was that the law of electrodynamics is to be modified. Means in emission theory, it is assumed that the velocity of light depends on the motion of the source. Till now, we are supposing the velocity of light is c always.
velocity of light is c always, it is with respect to the ether. Velocity of light is c with respect to ether, which is stable in absolute range. So it is assumed that the velocity of light in emission theory, it is assumed that velocity of light depends on the motion of source and relative to the source it is c. Means वेलोसिटी, लाइट की जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी मोशन, सोर्स के मोशन पे डिपेंड करती है। और सोर्स में अगर ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी वेलोसिटी c आएगी। वेलोसिटी अगर ऑब्जर्वर सोर्स में ही बैठा है, वहीं से ऑब्जर्व कर रहा है, तब तो उसकी वेलोसिटी c है। बाहर का कोई ऑब्जर्वर इस सारी फिनोमिना को ऑब्जर्व कर रहा है, तो हम देखेंगे कि मोशन के साथ साथ उसकी वेलोसिटी ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द मोशन ऑफ द सोर्स। सोर्स के मोशन, जिस सोर्स से वो लाइट आ रही है उसका मोशन पे ये वेलोसिटी डिपेंड करेगी। ये इमिशन थ्योरी है। दिस थ्योरी इज नॉट कंसिस्टेंट। दिस वाज द थ्योरी गिवन इन इमिशन थ्योरी। एज एन इमिशन थ्योरी, this emission theory is not consistent with the wave theory of light. Wave theory of light के हिसाब से ये जो थ्योरी है वो सही नहीं है, पर फिर भी हमारे लिए माइकलसन-मोर्ले एक्सपेरिमेंट के नेगेटिव रिजल्ट को ये एक्सपेरिमेंट करती है। तो इमिशन थ्योरी को चेक किया कि भाई सोर्स के साथ वेलोसिटी ऑफ लाइट चेंज होती है, ये मानते हुए चेक किया गया। तो क्या चेक किया गया? फिनोमिना ऑफ डबल स्टार। डबल स्टार जो अपने आकाश में डबल स्टार के कई सारे पेयर्स हैं, उन पेयर्स में से डबल स्टार इस तरह से मूव करते हैं। एक स्टार के साथ दूसरा स्टार एक दूसरे के चक्कर लगाते हैं। अब क्या होगा, इन डबल स्टार्स में से जैसे एक स्टार नीचे की तरफ आएगा, उसकी वेलोसिटी नीचे की तरफ आ रही है और दूसरा स्टार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां से जो रे ऑफ लाइट यहां से अर्थ की तरफ आएगी उसकी, और ये जो स्टार ऊपर की तरफ जा रहा है इसकी वेलोसिटी डिफरेंट होगी। और वेलोसिटी डिफरेंट होने के कारण हमें यहां गोस्ट स्टार अपीयर होना चाहिए। अपीयर एंड डिसअपीयर ऑफ द गोस्ट स्टार होना चाहिए, पर होता नहीं। तो ये डबल स्टार के फिनोमिना ने हमें इस बात को सोचने को मजबूर कर दिया कि वेलोसिटी ऑफ लाइट सोर्स के साथ सोर्स के मोशन पे डिपेंड करती है, नहीं करती। तो ये एक चीज थी। दूसरा, यूज ऑफ सनलाइट इन माइकलसन-मोर्ले। अगर ऐसा सही है तो माइकलसन-मोर्ले में सनलाइट का उपयोग कर लें तो नेगेटिव रिजल्ट नहीं आने चाहिए, पर फिर भी नेगेटिव रिजल्ट आ रहे हैं। सनलाइट का हमने मोनोक्रोमेटिक सोर्स का उपयोग किया था, अगर सनलाइट का उपयोग कर ले तो नेगेटिव रिजल्ट हमारे एक्सप्लेन हो जाने चाहिए थे, पर वो नहीं होता। तो ये इन दो फिनोमिना के कारण इस इमिशन थ्योरी को भी छोड़ना पड़ा। फिर प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। चौथा ये कहा कि भाई लाइट की स्पीड हमेशा कांस्टेंट रहती है, ऐसा माना। तो हमने जो थर्ड प्रेडिक्शन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बाद थर्ड जो पॉइंट लिया था, उस पॉइंट में यही कहा था कि लॉ ऑफ मैकेनिक्स होल्ड्स गुड, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होल्ड्स गुड, but law of mechanics has to be modified accordingly. So here law of mechanics modified in a way that principle of constancy of speed of light, लाइट की जो स्पीड है वो कांस्टेंट रहती है। पर ये चीज भी एक्सप्लेन गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में फेल हो गई। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में इसको चेक करने की कोशिश की गई, तो वो चेक फेल हो गया कि दो इनर्शियल फ्रेम में अगर वेलोसिटी मेजर की जाए, जो हमने पहले किया था,
तो वो मेजर किया जाए तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन हमारे फेल हो जाते हैं. इट मीन्स वी हैव टू थिंक अपॉन द न्यू ट्रांसफॉर्मेशंस. We have to think about new transformations which are more powerful than the Galilean transformations. And we have to think about this, that space and time both are not absolute, but they are relative. This we have to think. From these explanations, it comes to our mind that the absolute our assumption was up till now, our assumption is that space and time is absolute, but now we have to think about that the space and time are whether absolute or they are relative. We will study this in our next lecture. Thank you very much.